کہا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، علی سے رہا نہیں گیا۔ علی بولے فاطمہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں عورتوں کا جنازہ رات میں نکالنے کا ذکر ہو، فاطمہ حدیث بھی نہیں ہے کہ جو نبی نے فرمایا ہو عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے، تو پھر تم نے کیوں کہا رات میں جنازہ نکالنا؟ قرآن کی آیت نہیں، حدیث نہیں ہے، تو فاطمہ کی چاہت کیا ہے؟ فاطمہ نے مانگا کیا ہے؟ فاطمہ نے کیا کہا؟ اپنے گھر جا کے بیٹیوں کو نبی کی بیٹی کی زندگی کا یہ پیغام دے دینا۔ سیدہ فاطمہ بولی او میرے سرتاج، آپ نے مجھ سے قرآن کو نہیں پوچھا، آپ نے مجھ سے حدیث کو نہیں پوچھا، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، میں تو یہ کہہ رہی ہوں میرا جنازہ رات میں نکالا جائے۔ آپ نے میری چاہت پوچھی ہے، میری چاہت یہ ہے رات میں جنازہ نکالا جائے۔ علی بولے فاطمہ تمہاری ایسی چاہت کیوں ہے وہ بتانا پڑے گا۔ فاطمہ بولی سرتاج میرے علی، میں نے اس لیے کہا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گی اپنے اوپر کسی غیر مرد کی نظر پڑنے نہیں دوں گی، بے پردہ نہیں آؤں گی، کسی کے سامنے نہیں آؤں گی، میرے اوپر کسی مرد کی نظر نہیں پڑے گی۔ علی میں یہ چاہتی ہوں جیتے جی میں حفاظت کروں، اور جب میں انتقال کر جاؤں تو چاہتی یہ ہوں کہ میرے جنازے پر بھی میرے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پردہ مانگا، پردہ کیا مانگا بولو؟ ابھی دونوں شاعر ہیں یہ، ان کا بھی جلوہ دیکھیے۔ میری وجہ سے انہوں نے مختصر پڑھا ہے، ابھی تھے کھلے بھی نہیں تھے۔ میری تقریر ہونے جا رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، دل سے دعائیں دیتا ہوں۔ واقعی میں نے کہا ہے نہیں کسی کو حقیر مت جانو، پتہ نہیں اتنے علماء ہے، یہ بھی گناہگار آیا، ایسا کام کیا ہے تم نے، صحیح بتا رہا ہوں، ایسا کام سب لوگ اگر آمین کہہ دو گے نا، سب لوگ آمین کہہ دو گے تو آج انشاءاللہ تم لوگ بھی کہو گے پتہ نہیں کس کی قبول ہو جائے۔ اے اللہ اس پوری بستی میں بہاریں عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ وہاں سے مہمان بھدرک سے بھی آئے ہیں حضرت، وہ ہوٹل والے کیا نام ان کا، چاند جن کے میں نے بریانی کھائی تھی، کیا نام؟ ہاں چچا ہوٹل، سمجھے، وہ آئے ہیں سننے کے لیے یہاں پہ۔ ہمارے وہاں سے بھونیشور سے ادھر سے دلور بھائی آئے ہیں، دلدار بھائی آئے ہیں، ان کے ساتھ میں منا بھائی آئے ہیں، سمجھے، اور بھی علماء دور دور سے ہیں، بڑی بڑی دور سے۔ اس گناہگار کا نام سن کے اس لائق تو نہیں ہوں، یہ سب آپ کی محبتیں ہیں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو معاف کر دینا، کیونکہ پچھلے پروگرام میں مجبوری ایسی رہی، حاضر نہیں ہو پایا تھا۔ کسی کمیٹی والے کو انہوں نے دعوت دی تھی ان کے ساتھ میں، اور مجھے بھی دعوت دی تھی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اے اللہ تو ان کی زندگیوں میں بہاریں عطا فرما دے، اے اللہ تو ان کے بچوں کی زندگیوں کو روشن کر دے، اے اللہ تو ان کو اتنا دے، ان کی زندگی اور آخرت دونوں روشن فرما دے۔ میرے مولا جس کا کوئی کام اٹکا ہوا، مجھ سے بہت لوگوں نے دعا کرائی، میں نے کچھ لکھ کے بھی دیا ہے، اے اللہ تو آج سب کو قبول فرما لینا۔ میرے مولا جس نے جو کام کے لیے کہا ہے، اے اللہ غوث پاک کے صدقے میں اس کو پورا فرما دینا۔ میرے مولا پروردگار عالم ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرما لینا۔ نبی نے فرمایا تھا 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، دوسرا ومنان، تیسرا احسان کر کے احسان جتانے والا۔ آخری بات بتا کر کے جا رہا ہوں پیارے، یہ تمہارا بھائی ہے، جب بھی انشاءاللہ کام کرنے والوں نوجوانوں، میں نے کہا تھا تمہارے ساتھ میں گلے گلے پانی میں شریک ہوں، جائز کام کے لیے شریک رہوں گا انشاءاللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آخری پیغام تمہیں دے کے جا رہا ہوں، 1.5 گھنٹے سے زیادہ ہونے والا ہے، لیکن آخری بات سنو پیارے، کیونکہ ان کو بھی سننا ہے۔ آخری بات یہ ہے اپنے دل کا میل نکال دینا، دل سے حسد اور کینہ اور بغاوت نکال دینا۔ ایک دوسرے سے ناراضگی کو تمہیں ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاتا ہوں، ایک دوسرے سے ناراضگی کو دور کر دینا۔ آج کے بعد ایسے ہو جانا سب گاؤں والے مل جل کر کے، جیسے کہ دونوں سب لوگ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ چھوٹو بڑوں کی عزت کرنا، بڑوں
छोटों से प्यार करना, इधर से आओ तो सलाम, उधर से आओ तो सलाम, आपस में मेल मोहब्बत प्यार, एक दूसरे को देख के मुस्कुराओ, किसी गरीब को मत सताओ, गरीबों की मदद करो, किसी का रिश्ता मत तोड़वाओ, सबकी बहन बेटियों की इज्जत करो, इंशाअल्लाह तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत होगी। इतने प्यार से चलो तो चलने की अदा बोले नबी नबी, खाओ तो खाने की अदा बोले नबी नबी, पियो तो पीने की अदा बोले नबी नबी, हर हर धड़कन बोले नबी नबी, जिधर से गुजरो तुम्हें देख करके लोग कहें अपने नहीं बल्कि गैर कहें, कहें वाह जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इनका इस्लाम कितना अच्छा होगा, जब कुरान पढ़ने वाला इतना अच्छा है तो इनका कुरान कितना अच्छा होगा, जब नबी का गुलाम इतना अच्छा है तो फिर नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा। अब सुनो आखिरी बात जो मैं बताने के लिए जा रहा था हजरत आयशा से। मेरे नबी ने एक दिन ये कह दिया आयशा तुम भी मांग लो, इधर हजरत अली ने फातिमा से कहा था तुम पूछ लो, मेरे नबी ने कहा आयशा तुम भी पूछ लो, जो पूछना चाहती हो किसी से मशवरा भी ले लो। हजरत आयशा सीधी अपने अब्बा जान के पास गई, हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास गई और जाकर के कहने लगी अब्बा जान नबी ने ऐसे ऐसे कहा है क्या पूछ लूं? कहा बेटी मैं बताऊंगा क्या पूछना है, मगर मुझे भी बताना, मुझे भी बताना, ऐसी बात पूछना जो ना किताबों में है, ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना किसी को मालूम, ना अबू बकर, ना उस्मान, ना उमर, ना मौला अली को मालूम, हत्ता के जिब्रील, मीकाईल, इज़राइल, इसराफील किसी फरिश्ते को भी मालूम नहीं है। आज वो बात नबी से पूछना है। कौन सी बात है जरा सुनो, सुनने की बात है। कौन सी बात जो ना किताबों में है, ना फरिश्तों को मालूम है, ना सहाबा को मालूम है। मैं बताऊंगा क्या पूछना है, मगर मुझे भी बताना बात क्या है। कहाँ बजान बताऊंगी। मेरे नबी के खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले बेटी पूछना क्या है बताऊं? ये पूछना आका जब आप मेराज को गए थे, मेराज को कहाँ गए थे बोलो? मेराज को गए थे। पहले आसमान पे, दूसरे आसमान पे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील साथ में है। अब जिब्रील रुक जाते हैं, आगे जाएंगे तो इनके पर जल जाएंगे। आका अपने बस की नहीं, जिब्रील रुक गए और जब वहां से नबी आगे गए तो कुर्बे खास में पहुंचे, मौला के पास पहुंचे। परवरदिगार से आका ने जब बात की है, नबी ने जो बातें की हैं, यानी अल्लाह और रसूलुल्लाह में जो राज़ो नियाज़ की बातें हुई, ना वो कुरान में है, ना हदीस में, ना फरिश्तों को मालूम, ना किसी नबी सहाबी को मालूम है, तो फिर वो कौन सी बातें हैं? आयशा आज तुम नबी से पूछ लेना आका वो राज़ो नियाज़ की जो बातें थी उन तमाम बातों में से कोई एक बात बता दो, एक बात बता दो। हजरत आयशा दौड़ती हुई आई और आकर के कहने लगी आका पूछ लूं? नबी बोले तुम नहीं बोल रही हो, तुम्हारे पीछे कोई और बोल रहा है। अरे ये कोई और है जो तुमसे पूछवाना चाहता है। कहा आका मेरे अब्बा जान है। कहा पूछो क्या पूछना चाहते हो? कहा आका आप मेराज को गए, आप में और अल्लाह में जो बातें हुई थी वो किसी को पता नहीं है, वो कोई जाहिर नहीं है, वो राज है, राज। उन तमाम बातों में कोई एक बात बता दो। अब सुनो वो बात क्या है। वो सगड़ी के गयूर मुसलमानों अमल करके जाना इस बात पे। ये सैयदजादा तुमने बड़े प्यार से बुलाया, बड़ी मेहनत और मोहब्बत से बुलाया, ये पैगाम अपने दिलों में लेकर के जाना, अमल करना, इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। बोलो अगर तुमने मेरा साथ दिया और हम मिल करके चले और ये शोरा को साथ में रखा, इमाम उलमा को साथ में रखा, चंद दिनों में इनकलाब पैदा कर देंगे। बोलो इनकलाब पैदा कर देंगे। वो बात बता दीजिए आका। मेरे नबी ने फरमाया आयशा बहुत बड़ी बात पूछ रही हो। कहाँ आका बता दे। मेरे नबी ने फरमाया आयशा सुनो वो बात ये है जब मेरे दरमियान और अल्लाह के दरमियान जो बातें हुई हैं उन बातों में से एक ही बताऊंगा। कहाँ आका बता दो। कहा मेरे नबी ने मुझसे कहा, मेरे अल्लाह ने मुझसे कहा, मेरे परवरदिगार ने मुझसे कहा ओ मेरे महबूब सुन ले प्यारे, सुन ले, सुन ले। ये बात जो हुई थी उनमें से एक बात ये है, अल्लाह ने कहा महबूब अगर तेरे उम्मतियों में कोई भी, तेरे उम्मतियों में कोई भी टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा, अगर आपस में नफरत है वो खत्म करके मिल जाएगा, मोहब्बत मिला लेगा, एक दूसरे से प्यार करेगा, जो नफरतें होंगी वो खत्म कर देगा, टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा, वो जन्नती हो जाएगा, बगैर हिसाब किताब के जन्नत
में ले जाना, जन्नत में ले जाना, उससे कोई हिसाब व किताब नहीं होगा। वो महबूब तुम्हारे साथ जन्नत में होगा जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा। प्यारो, आज के बाद सब में आपस में इत्तेफाक रखना। जब आयशा को पता चला, दौड़ती हुई नबी की बारगाह में गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, बेटी पता चला? कहा अब्बा जान पता चला। कहा क्या बात है? कहा जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा वो जन्नत के रास्ते पर है। जब इतना सुना तो अबू बकर रोने लगे, इतना रोए, उनकी दाढ़ियों में, उनकी दाढ़ी से आंसू निकल के कुर्ते पे, पैरान पे गिरने लगे। ओ लोगों, सगड़ी के गयूर मुसलमानों सुनो, अबू बकर क्यों रोए? इतनी अच्छी बात पे क्यों रोए? ये जुमला भी लेकर के जाना, ये बात भी लेकर के जाना। हजरत आयशा बोली, अब्बा जान क्या पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, हाथों में दर्द है, सर में दर्द है, क्यों रो रहे हैं? आंखों में आंसू क्यों है? मेरी बात बुरी लग गई, माफ कर देना। क्या बात है? कहा बेटी बात कुछ नहीं है, मैंने इतनी अच्छी बात सुनाई, आप रो रहे हो। अबू बकर ने क्या जवाब दिया? सुनो बेटी, तूने एक पलट देखा है, दूसरा पलट मुझसे सुन ले। इसका मतलब ये है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा वो जन्नत के रास्ते पर है, और जो जुड़े हुए दिलों को तोड़ देगा वो जहन्नम के रास्ते पर है। और आने वाले दिनों में जोड़ने वाले कम हैं और तोड़ने वाले ज्यादा। तुम्हें हाथ जोड़कर तुमने बड़े प्यार से किया कमेटी वाले, और तुमने इनका बड़ा साथ दिया। हाथ जोड़ के तुमसे कह के जाऊंगा, आज के बाद किसी को तकलीफ मत देना, आज के बाद किसी को मत सताना, आज के बाद किसी को गाली मत देना। माँ बाप की इज्जत करना, इमामों की इज्जत करना, नमाजियों हाजियों की इज्जत करना। तुम ये जल से करते हो, तुम्हारे पैसे 50,000 वैसे भी उठ जाते हैं। अल्लाह ना करे किसी के बच्चे, अरे माशाल्लाह भद्रक से हैं, सरकार नगर से हैं, समझे? ऐसे ऐसे लोग भी हैं, समझे? अल्लाह ना करे किसी के बच्चे की अगर तबीयत खराब हो जाए तो 50,000 रुपए उठ जाते हैं। जब जलसा होता है ये उलमा आते हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां इनके कदमों की बरकतों से, इनकी दुआओं से खत्म होती हैं, जो लाखों रुपए में खत्म होने वाली नहीं थी। बीमारियां खत्म होती हैं, आफतें खत्म होती हैं। मोहब्बतें बांटो प्यारे, उल्फतें बांटो, आपस में एक दूसरे से प्यार करो, नफरतों को मिटा दो, खत्म करो। लोगों को दिखा दो यार मुसलमान होता क्या है, इस्लाम होता क्या है। अकड़ने से कुछ नहीं होता। प्यारो, जितने झुकोगे ना माँ बाप के कदमों पे, उतने ही अल्लाह ताला उनकी दुआओं से तुम्हें बुलंद कर देगा, बुलंद कर देगा। मैं मुबारकबाद देता हूँ इन हजरात को, कमेटी वालों को, और तुम्हें भी, तुमने इनका साथ दिया, और इन उलमा को, शोरा को भी। ये आए हैं, तशरीफ लाए हैं, और कोई जाए नहीं, इनकी अभी सुनना है। मैं दिल से मैं सोचता हूँ ना इनकी भी सुन ली जाए, क्योंकि अभी 2 राउंड चलो कह रहे। आप बताओ क्या चाहते हो? थोड़े ही लोग बोल रहे हैं। अच्छा, सुनना चाहते हो तो एक नौजवान की और सुनाऊंगा, एक नौजवान की सुना दूं। मैंने कुछ बच्चों के बाल कुछ अलग कटिंग के देखे।